Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillahir Rahmanir Rahim, was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalikal fawzul azim. Meaning, and the earliest and the foremost muhajirin, those migrated from Makkah to Medina, उनको कहते हैं मुहाजिरीन सहाबा. Those came from Makkah to Medina, they are muhajirin, companion of Rasulullah. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, wal ansar, and the ansar sahaba, those that are from Medina. Ansar sahaba कौन है? जो मदीने से हैं. तो alhamdulillah from Medina. Wal ansar wallazina taba'uhum bi ihsan, and we can understand the helpers of the migrated and those who followed them. وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, those who followed them with virtue. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ, Allah subhanahu wa ta'ala says that Allah is pleased with them and they are pleased with Him. Allah subhanahu wa ta'ala pleased with the Sahaba of Rasulullah, Muhajirin Sahaba and the Ansar Sahaba, and they are pleased with Allah. अब Allah उससे ही pleased होता है जो जन्नती होता है. So you can understand from here, and then after that उनके लिए क्या reward है? What reward they will get from the court of Allah subhanahu wa ta'ala? How Allah subhanahu wa ta'ala loved them so much. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. He has kept ready for them gardens beneath which river flows in Jannah, to abide therein. और फिर क्या होगा? खालिदीना फीहा अबदा, to abide therein forever and ever. वो हमेशा में जन्नत के लिए रहेंगे. और फिर ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला says, only this is the great success for the Sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अब कुरान हमें बता रहा है. Today if anyone deny Quran, that person is out of Islam. Today anyone deny the farman of Rasulullah, that person is out of Islam. So from here we can understand Allah subhanahu wa ta'ala explaining the greatness and the shan of the ashab of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अब ये थी, अब यहाँ पर मुख्तसर सा तफसीर में we can understand कि what the ayat says. अब यहाँ पर in the tafsir of this ayah is explained beautifully what we understood. उनसे बाकी मुहाजिरीन व अंसार मुराद हैं, तो अब तमाम असहाब इसमें आ गए. The tafsir of this ayah कि each and every sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they are under this ayah. Not a single sahabi is out of this, from this ayah. Each and every sahabi उनके लिए रिवार्ड है कि वो जन्नत उनके लिए ठिकाना है, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला pleased with them and they are pleased with Allah सुब्हानहु व तआला. और फिर सूरतुल हदीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला बहुत से मौज़ूआत में मैं बयान कर चुका हूँ that Allah subhanahu wa ta'ala says those accepted Islam before Fatah Makkah, before conquest of Makkah, and those accepted Islam after conquest of Makkah. So Allah subhanahu wa ta'ala says wa kullan wa'adallahu al-husna, jannat ठिकाना है उनका. This is the farman of Allah subhanahu wa ta'ala, hukam of Allah subhanahu wa ta'ala कि each and every sahabi Allah subhanahu wa ta'ala praise them in Holy Quran. Sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. अब भी चलते हैं, we can understand the status of the all of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Ash-Shura आयत नंबर 23 है और पारा 25 है. So we can understand here beautifully. Allah subhanahu wa ta'ala says, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Meaning, say, now Allah subhanahu wa ta'ala says, oh my beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam, you say. Look at the shan of our Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allah commanded our Nabi Mustafa, O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you say, Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Say you, O beloved Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I do not ask any recompense from you from this promulgation of religion, except one thing I ask from you, illa al-mawaddata fil qurba,
except one thing I ask, your love for my near relatives. Allah subhanahu wa ta'ala says कि O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you say. तो Rasulullah sallallahu alaihi wasallam commanded, obeyed the order of Allah subhanahu wa ta'ala, and he says कि I don't ask anything from you, but I ask one thing, that you must love those are near to me, those are close to me. From Hadith Pak of our Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, from this hadith we can understand the greatness of Sahaba of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जामा तिरमिज़ी शरीफ से मैं आपके सामने ये हवाला पेश कर रहा हूँ, फ्रॉम सहासित्ता से. क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज कि आफ्टर मी, मेरे बाद सहाबा का जब मामला आए तो अल्लाह से डरते रहना. आफ्टर मी, व्हेन इट्स कम अबाउट माय कंपेनियन, सो बी केयरफुल, मस्ट फियर अल्लाह सुब्हानहु व तआला. अब दिस इज द हुक्म ऑफ नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन हुज ग्रेटनेस, इन द ग्रेटनेस ऑफ द सहाबा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डरते रहना अल्लाह से. ला तत्तखिजुहुम गरदन बादी. अब आज कोई कहे कि भाई रसूलुल्लाह नेवर सेज के द टाइम 1444 2022 द टाइम विल कम, पीपल विल स्टार्ट इंसल्टिंग द सहाबा ऑफ रसूलुल्लाह. अरे 1400 years ago रसूलुल्लाह already explained. रसूलुल्लाह says must fear Allah when it's come about my sahaba, when it's come about my companion. ला तत्तखिजुहुम गरदन बादी, और मेरे बाद उनको निशाना ना बना लेना. After me must not attack the integrity of my sahaba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, "Faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, those love my sahaba because of the love of me. तो मेरे सहाबा से मोहब्बत करो because of my love. अब when first जुमा of मुहर्रम उल हराम मुकाम अहले बैत, रसूलुल्लाह says व अहिब्बु अहला बैती लिहुब्बी. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम says love my all because of my love. अब here रसूलुल्लाह says love my sahaba because of my love. Because of the sake of my love you must love my sahaba. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says waman abghadahum fabi bughdi abghadahum, and whoever have hatred against my sahaba, so that person have hatred against me. And then Rasulullah furthermore, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says waman azahum faqad azani. तो Rasulullah already explained. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says जिसने मेरे सहाबा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी. That person gave me तकलीफ. And then waman azani, जिसने मुझे तकलीफ दी, फaqad azallah, उसने अल्लाह को तकलीफ दी. और फिर वमन आज अल्लाह, जिसने अल्लाह को तकलीफ दी, यूशिकु अन याखुज़हु, सो दैट डर्टी पर्सन विल बी अंडर द पनिशमेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि अल्हम्दुलिल्लाह हियर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज कि अल्लाह उसे अपने अजाब में उसको पकड़ेगा. द अदर हवाला वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द कोट ऑफ अवर नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दिस नरेशन इज इन द स्टेटस ऑफ द आल ऑफ रसूलुल्लाह, the Ahl Bayt Tahar of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who narrate Hazrat Jabir bin Abdullah and Jabir. आप रवायत करते हैं قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, I saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصوى. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the day of Arafah, हज्जतुल वदा का मौका था. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sitting on his कसवा कैमल फ़ख़तबा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खिताब फरमा रहे थे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was saying फ़समिअतुहु व हुवा यक़ूलु. रसूलुल्लाह was giving his sermon on the day of Arafah, हज्जतुल वदा के मौके पर. और फिर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं फ़समिअतुहु व हुवा यक़ूलु, I heard this फरमान of my नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम that day on the day of Arafah. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम says अय्युहन नास, O people, क़द तरक्तु फ़ीकुम, I am leaving you two things
amongst yourself must not leave their daman. Ma in akhastum bihi lan tadillu. If you leave these two things daman, so then you will be on the wrong path. So must not leave. You make sure with istiqamat, with steadfastness, you must hold the daman of these two blessed things. First thing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, Kitab Allah, Quran Majid, the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, wa itrati ahla bayti, and my ahle bayt. अब जिसने अहले बैत का दामन छोड़ा, कुरान का दामन छोड़ा, तो वो फिर हलाक हो गया. That person is on a stray path. That person वो गुमराह हो गया. That person is not on right path. तो here alhamdulillah हमने कुरान भी पहले सुना, and then we understand the मुकाम of अहले बैत. The khutbah of Hazrat Imam Zainul Abidin, Ahle Bayt, A'immah Mutahirin, one great Imam from A'immah Ahle Bayt, who is the grandson of Hazrat Ali Sher Khuda. Ya Ali, Ya Ali. मैं ये हवाला पेश कर रहा हूँ from the book of a Sunni Imam, the one Imam Abu Naim. ये हिलियतुल औलिया. पहले आप इस बुक की ज़ियारत करें. वॉल्यूम नंबर 2. दिस इमाम इज द इमाम ऑफ द 4th century and the 5th century. वी आर टुडे इन 1444. और दिस इमाम में पर्दा फ्रॉम दिस दुनिया 430 हिजरी. अब हम हैं 1444 में. और दिस ग्रेट इमाम, अब यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह घबराइए नहीं, मैं आपको यही हवाला, दिस सेम प्रूव आई विल प्रूव यू फ्रॉम द बुक ऑफ द शिया इमाम एज वेल, कि ये उसने ही प्रिंटेड दिस खुतबा ऑफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, द सन ऑफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके दादा जान हैं हजरत अली शेर खुदा और जिनके नाना जान है नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब यहां पर कुछ लोग आ गए, वन ग्रुप ऑफ रवाफिज. अब ये है फरमान. फ्रॉम हेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ द अदल, द जस्टिस ऑफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम दिस नरेशन, हिज इनर सेल्फ आल्सो, हिज आउटर सेल्फ आल्सो लव ईच एंड एवरी सहाबी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब यहां पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाहु अकबर, वन ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम इराक, they came in the court of Hazrat Imam Zainul Abidin. Majlis लगी थी, each and everyone present and listening the khutbah of Hazrat Imam Zainul Abidin radiyallahu ta'ala anhu. अब उन लोग, वो जब लोग तशरीफ लाए, रवाफिज थे, तो दे स्टार्ट स्पीकिंग इल अबाउट हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर बिन खत्ताब, फी अबी बकर व उमर व उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हुम. दे स्टार्ट स्पीकिंग इल अबाउट हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान. अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चला कि दे आर स्पीकिंग इल अबाउट फर्स्ट खलीफ ऑफ इस्लाम, अफ़दलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, द वन हु हैव ग्रेट मुकाम, ग्रेटनेस आफ्टर द ईच एंड एवरी प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सुब्हानहु व तआला, दैट इज द ज़ात ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक. दे स्टार्ट स्पीकिंग इल अबाउट हजरत उमर बिन खत्ताब, सेकंड खलीफ ऑफ इस्लाम. दे स्टार्ट स्पीकिंग इल अबाउट हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, थर्ड खलीफ ऑफ इस्लाम. तो यहां पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन सेज, अला तुखबिरूनी अला तुखबिरूननी, मुझे एक बात बताओ, अंतुमुल मुहाजिरून अल अव्वलून. I am going to read this ayah from Quran. So you must tell me that this ayat is talking about you. हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये आयत पढ़ी फ्रॉम सूरतुल हशर. मैं आपको इसका तर्जमा भी आपके सामने रखता हूं, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही सेज. ही रेड दिस आया फ्रॉम सूरतुल हशर. फ्रॉम कौन सी सूरत से? सूरतुल सब बोला करें अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि आपको भी सवाब मिले. अब यहां पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही ब्यूटीफुली रीड दिस आया. अल्लाहु अकबर. आयत नंबर 8 ऑफ सूरतुल हशर, पारा नंबर है 28. लिल फुकरा इल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवानहु व यंसुरून अल्लाह व रसूला उलाइका हुमुस सादिकून. इमाम ज़ैनुल आबिदीन सेज कि यू मस्ट टेल मी आफ्टर दिस आया, व्हेन आई कंप्लीट दिस आया, कि दिस आयत इज टॉकिंग अबाउट यू एंड आल्सो फॉर दी लिल फुकरा, जो मुहाजिरीन हैं, दोज माइग्रेटेड हु वर बैनिश फ्रॉम देयर होम्स एंड देयर वेल्थ, जिन्होंने अपना घर और अपना माल छोड़ा, यानी मुहाजिरीन. दोज वाज इन मक्का बट दे स्टार्टेड देयर हिजरत. दे स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम मक्का एंड कमिंग इन मदीना. दे लेफ्ट देयर होम, they left their mal.
और वो मदीना इस नीयत से नहीं गए, दे नेवर वेंट एंड माइग्रेटेड टू मदीना फॉर दिस इंटेंशन कि भाई मे बी वी विल हैव आवर होम इन मदीना, वी विल हैव बिग लैंड इन मदीना। वो किस व्हाई दे लेफ्ट मक्का, व्हाई दे माइग्रेटेड इन मदीना, सो फिर वो किस लिए निकले। यहां पर ब्यूटीफुली अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज कि व अमवालिहिम यब्तगून फदलन मिन अल्लाह, दे लेफ्ट एवरीथिंग फॉर द फजल ऑफ अल्लाह, to gain the fazl of Allah, to gain the bounty of Allah subhanahu wa ta'ala, while seeking Allah subhanahu wa ta'ala fadl and helping the religion of Allah. And then Allah subhanahu wa ta'ala says कि वयंसुरून अल्लाह व रसूला, वो अल्लाह की भी मदद करते हैं और रसूलुल्लाह की भी मदद करते हैं। मुहाजिरीन सहाबा, how they help Allah, how they help रसूलुल्लाह, यानी they help the religion of Allah, they help the religion of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन सेज फ्रॉम कुरान, आई एम प्रूविंग यू द स्टेटस ऑफ मुहाजिरीन सहाबा, उलाइका हुमुस सादिकून, वो सब सच्चे हैं, दे आर द ट्रूथफुल, मुहाजिरीन सहाबा। और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ये आयत पढ़ ली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सेज क़ाला अंतुम हुम, कि दिस आयत इज टॉकिंग अबाउट यू। तो वो सब बोले, रवाफिज बोले क़ालू ला, नहीं, दिस आयत इज नॉट टॉकिंग अबाउट अस। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सेज ओके, आयत नंबर 9 ऑफ सूरतुल हशर मैं आपको बयान करता हूं। आयत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सेज ब्यूटीफुली, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना तबव्वउद-दारा वल ईमाना मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व यु'थिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा व मन युका शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। Imam Zainul Abidin says, and those, beautifully the meaning of this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, and those Ansar Sahaba who made homes in this city of Medina and in faith before the Muhajirin Sahaba. Okay, Ansar Sahaba, those was already in Medina before the Muhajirin, before the Muhajirin come from Makkah. तो ये उनका, क्योंकि जो दार है तबव्वउद-दार, दार भी मदीने का नाम है और ईमान भी मदीने का नाम है। From here we can understand, min qablihim, उनसे पहले जो अंसार साहबा already was in Medina, yuhibbuna man hajara, before the arrival of muhajirin they befriend those who migrated towards them. अब अंसार साहबा ने ये नहीं कहा कि भाई how this all muhajirin from Makkah they coming to Medina, how we will look after them, but how we will welcome them. So Ansar Sahaba in their heart they were ready to welcome, because they knew these are the lovers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. उन्होंने without any doubt they happily they welcome Muhajirin Sahaba, उन्होंने अपनी परवाह नहीं की। और फिर यहाँ पर हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, and in their hearts do not find any need of what they have been given, and they prefer those above themselves. और फिर अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा व मन युका शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, even if they themselves are in dire need, but they still welcome the Muhajirin Sahaba. And whosoever is saved from the greed of his own self, so Imam Zainul Abidin says ये कुरान का फैसला है। और कुरान का फैसला कौन करता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये कलाम है, दिस इज द हुक्म ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि जो अंसार सहाबा है वो कौन है? फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ओनली दे हु आर द सक्सेसफुल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये आयत पढ़ी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा अंतुम हुम, दिस आयत आल्सो टॉकिंग अबाउट यू। उन्होंने कहा कालूला, those was insulting the Sahaba, friend of Imam Zainul Abidin. So Imam Zainul Abidin says ये भी आयत तुम्हारे बारे में नहीं है। और फिर first आयत also is not talking about you. Third आयत I am going to read front of you, and I bear witness. قال أشهد
अन्नकुम लस्तुम मिनल लजीना। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सेज के थर्ड आयत आई एम गोइंग टू रीड फ्रंट ऑफ यू, तो मैं तुम्हें कहता हूं दैट आयत इज आल्सो नॉट टॉकिंग अबाउट यू, यू हैव नथिंग टू डू विद दिस आया। और वो कौन सी आयत थी? सूरतुल हशर की आयत नंबर 10, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, मीनिंग एंड दोज़ हू कम आफ्टर देम सबमिट, यानी जो केम इन द टाइम जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ये आयत पढ़ी। अब वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, till each and every believer that will come till the day of judgment, this ayat is talking about that believer। जो क़यामत तक जो मुसलमान आएगा, फेथफुल लवर ऑफ रसूलुल्लाह, फेथफुल बिलीवर, ये आयत उसके लिए शान बयान कर रही है। और फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन says that time when इमाम ज़ैनुल आबिदीन read this ayah, इमाम ज़ैनुल आबिदीन says जो came after मुहाजिरीन सहाबा, आफ्टर अंसार सहाबा, तो वो क्या दुआ करते हैं इन दी कोर्ट ऑफ अल्लाह? यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना, ओ आवर लॉर्ड, ओ आवर रब, फॉरगिव अस, इग़फ़िर लना, एंड वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, एंड फॉरगिव आवर ब्रदर्स हु एक्सेप्टेड फेथ बिफोर अस। और यहाँ पर फिर वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना, और फिर क्या दुआ करते हैं इन दी कोर्ट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ओ आवर लॉर्ड, एंड प्लेस नॉट एनी hatred in our hearts towards the believers। अब ये वो दुआ करते हैं, और क्योंकि मोमिन वही होता है जो सहाबा से भी मोहब्बत करता है और अहले बैत से भी मोहब्बत करता है, क्योंकि ईमान उसी के दिल में दाखिल होता है। Only that person have full ईमान, the one who love the sahaba and the all of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम, you are indeed ओ our रब मोस्ट compassionate and most merciful। जब ये आयत बयान कर दी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन says के अन्नकुम लस्तुम मिनल लज़ीना, दिस आयत is also not talking about you, क्योंकि ये आयत believers की बात कर रही है, those love ashab and all of रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब ये बयान किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन says के इख़रुजू, don't sit in my gathering, get out from my majlis। They was insulting Abu Bakr, they was insulting Hazrat Umar, they was insulting Hazrat Usman, Sahaba of Rasulullah। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आपने कहा कि मेरी गैदरिंग में only that person can sit, the one who loves Sahaba and the all of Rasulullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये है खुतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, ये मैंने आपको बयान किया फ्रॉम अ बुक ऑफ सुन्नी इमाम, फ्रॉम हुज बुक? सुन्नी इमाम, इमाम अबू नैम। अब आप बाहर जाएं, अदर साइड रवाफिज आपको कहे कि भाई मौलाना ने तो चलो बयान किया सुन्नी किताब से, हमारी किताबों से बयान करो दिस खुतबा ऑफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन। तो फिर शिया इमाम है राफ़ज़ियों का, कश्फुल गुम्मा उसकी ये किताब है, उस इमाम का नाम है इरबली। ये कश्फुल गुम्मा इरबली की किताब है, राफ़ज़ियों और शियों का इमाम है। ही पूरा तफसील के साथ ही रोड दिस खुतबा ऑफ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कि हाउ इमाम ज़ैनुल आबिदीन रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी सहाबी ऑफ रसूलुल्लाह। और अपनी मजलिस से इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने रवाफिज को निकाल दिया कि गेट आउट फ्रॉम माई मजलिस। तो ये है शान अल्हम्दुलिल्लाह के कुर्बान जाएं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन का अकीदा भी अहलुस सुन्नह वल जमात। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह के लव सहाबा, लव अहले बैत बिकॉज ऑफ रसूलुल्लाह।